Hello dear student, in this video I will share you some of the steps through which you can conquer your upcoming session. That is finally the going on session has been over now. So now the new academic session is at your doorstep. It is just going to start from the month of April. So it might be there are two of the result. First one is positive and another one is negative. Positive means good and sufficient amount of marks you might have received in your examination, and second one is the negative result. Negative in the sense you have scored less marks in one subject or in overall the result. So don't worry, don't get panicked, okay? Tell your guardian to give one more chance to you. This time you have to be very confident. So how you should start your work? How should you start your academic session? If you have to grow, if you want to grow yourself, then first thing what you have to do is to build up the confidence in yourself. सबसे पहली चीज़ आपको जो अपने अंदर रखनी होगी वो क्या है? कॉन्फिडेंस. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोग कोई भी काम करिए वो काम में सफलता मिल ही नहीं सकती. कितना भी मेहनत कर लीजिए, जब कॉन्फिडेंस नहीं है कितना भी मेहनत किया रहेगा आदमी, बट आप जब आपको काम करने का समय आएगा तो कॉन्फिडेंस है नहीं, घबरा जाएगा आदमी. अब उसके चक्कर में आप काम खराब कर देते हैं. तो सबसे पहला चीज़ क्या होती है? कॉन्फिडेंस. आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा, ठीक है? फर्स्ट थिंग क्लियर हुआ. एंड व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? एज द सेशन स्टार्ट, many of the student thinks that it is just a starting of the session, we will cover the whole syllabus during the examination time and all. One thing you have to keep in mind, if anyone says to you that I just study at the last night and receive such a high score of marks, then that marks is just a marks. It doesn't resemble his or her knowledge, okay? Because just a day before study will remain just a day after the exam. मतलब एक दिन पहले की स्टडी ना सिर्फ मार्क्स दिला सकती है, ज्ञान नहीं. अगर आपको ज्ञान चाहिए, इफ़ यू वांट टू स्कोर द मार्क्स एज वेल एज द नॉलेज, देन यू हैव टू डू द रेगुलर स्टडीज. इफ सपोज on 2nd of April your classes has been started, from the day on that day only you have to start your work at your home. The first and foremost thing that will keep your consistency is the dedication to your works. First is confidence, second is dedication to your work. What is the work of the student? The normal work of the student is to study, okay? The most important work is study. So keep on studying. Second cheese, first is confidence, second cheese is consistency. Okay, what is consistency? Consistency means एकाग्रता, मतलब उस काम को करने के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है? तो उसी को कंसिस्टेंसी, मतलब रोज काम करेंगे, रोज पढ़ेंगे. ये नहीं कि अच्छा चलो आज सैटरडे है, आई विल लीव इट फॉर संडे, यहीं पे आप एक दिन गैप कर गए, ठीक? फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, सेकेंड इज डेडिकेशन टू द वर्क एंड द थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी, ओके? आपको कैसे पढ़ना है? बहुत आसान स्ट्रैटेजी, बहुत आसान, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जिससे कि कभी भी आपको ना पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी और कभी भी आपको नहीं लगे अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बताता हूँ क्या स्टेप है. आपको क्या करना है, जिस दिन भी पढ़ाया गया, जो भी पढ़ाया गया, 1 पेज पढ़ाया गया, 2 पेज पढ़ाया गया, जो भी, आप सबसे पहले घर जाइए ना, अपने क्लास में जैसा पीरियड स्कूल में चला है, एज पर दैट यू शुड स्टडी एट योर होम, ओके? सपोज फर्स्ट पीरियड इज इंग्लिश, ओके? You have taken out your book at your home, okay, and then you have studied that much part which has been taught in your school, okay, that day only. Suppose मंडे को इंग्लिश में 2 पेज पढ़ाया गया, आप उसको ओपन कीजिए. सबसे पहले इंग्लिश, फर्स्ट पीरियड इंग्लिश था, उसमें 2 पेज पढ़ाया गया ना, एकदम एक एक लाइन रीड कर जाइए, एक एक लाइन, एक एक वर्ड. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वर्ड, उसको अंडरलाइन कीजिए, डिक्शनरी पास में रखिए, उससे देखिए अच्छा इस वर्ड का मतलब ये है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा. उसको ट्रांसलेट करके पढ़िए तो आपको समझ में आ गया एक लाइन. अब अगर आपने 2 पेज उसी दिन अगर पूरा क्लियर कर लिया है तो आपको डाउट नहीं रह जाएगा, और अगर डाउट रहा भी तो आप अगले दिन जाके तुरंत ऑन द स्पॉट टीचर से पूछिए, बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी, इट्स टीचर्स ड्यूटी टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. अंडरस्टूड? तो आप लोग बेझिझक टीचर से कम्युनिकेट करते रहिए, ठीक है, अपने डाउट्स को. तो आपका उसी दिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उस चीज़ को.
ठीक, अब मान लीजिए इंग्लिश पढ़ लिए, सेकंड पीरियड मान लीजिए मैथ्स था, ठीक, मैथ्स में 2 सवाल कराया गया, फॉर्मूला बताया गया, आप उस फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए अच्छे से। कई लोग कहते हैं मैथ बुक क्यों पढ़ना, मैथ बुक पढ़ी जाती है, यू शुड लर्न द फॉर्मूला, लर्न द कॉन्सेप्ट, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट आस्क टू द टीचर नेक्स्ट डे, ओके। ऐसे ही सीरीज वाइज में पढ़ते जाइए, रेगुलर जैसे पीरियड चलाओ, पहला इंग्लिश, दूसरा मान लीजिए मैथ चलाओ, फिर साइंस चलाओ, फिर हिंदी चलाओ, जैसे चलाओ वैसे ही उठा के पढ़िए। आप किताब उठाइए, ओपन द बुक, रीड दैट मच टॉपिक विच हैज़ बीन टॉट दैट डे इन द स्कूल। इससे क्या होगा, आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या कीजिए, थोड़े समय के लिए ना एक कॉपी बनाइए, अब उसमें ना रेगुलर नोट्स बनाइए। आप मान लीजिए इंग्लिश पढ़े, अच्छा कोई टॉपिक पढ़ लिए, ठीक, उस टॉपिक को याद रखिए, अच्छा ये टॉपिक पढ़े थे, उस टॉपिक का टॉपिक डालिए, ठीक, उस टॉपिक पे जितना भी आपको आता है वो सब नोट डाउन कर दीजिए। इसी तरह हिंदी का भी कीजिए, मैथ्स का भी कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपने एक दिन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब इससे आपका बेनिफिट हुआ कि नहीं। दूसरी चीज़, अब ऐसे ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जैसे रहेगा करते जाइए। अब आता है सैटरडे का दिन। सैटरडे को स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो संडे को कर लेंगे, अब यहीं पे गैप कर गए। आपने एक दिन का काम टाल दिया, ऐसा ना करिए। सैटरडे का काम है ना, तो आप सैटरडे को निपटा दीजिए कि हाँ मेरा कल स्कूल है, ये सोच के नहीं, आप ये सोच के कि हाँ मुझे आज काम मिला है तो मैं आज ही कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने होंगे अगर आप तो समझेंगे। रीडिंग मैं बोल रहा हूँ, जो आदमी ना रीडिंग पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं, रीडिंग का जो कह रहा हूँ, रीडिंग कीजिए। आप देख लीजिएगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आप रीडिंग करके डेली रीडिंग कीजिए, आपका जो पहला टेस्ट होगा ना उसी में आप लोग ना एग्जाम में कनकर कर ले जाएंगे। द बेस्ट मार्क यू विल रिसीव फॉर योर सेल्फ। इससे माइंड क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं कोई चीज़, रीडिंग करने को क्यों कह रहे हैं, जब हम रीड करते हैं कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, अब रीड करते हैं वो वर्ड को, जो भी वर्ड्स रहते हैं वो हम आंखों से देखते हैं, वो ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन में जाके शॉर्ट मैसेज की तरह सेव हो जाता है, होता है कि नहीं। तो अब अगर बुक हटा भी दी जाए तो तुरंत दिमाग से अगर हम सोचें कोई टॉपिक के बारे में तो तुरंत वो दिमाग रिकॉल करेगा और फिर वो आपको आंसर बताएगा, आपकी ज़ुबान से आंसर मिलेगा, या लिखते समय ऑटोमेटिक हाथ से वो आंसर लिख पाएंगे। क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो वर्ड्स छप चुके हैं। समझ में आया। इसीलिए रीडिंग इज़ वेरी 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 एसेंशियल पार्ट ऑफ योर स्टडीज़, ओके। फर्स्ट इज डेडिकेशन, second is consistency, and the most important thing is confidence. Fourth is regular work should be there, reading, okay, reading and writing, ठीक है। रीडिंग करने के बाद समझ लीजिए, और फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टीचर से डाउट क्लियर कीजिए। उसके बाद आता है लिखने का। कई लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिखने में दिक्कत आती है। रीडिंग किए रहेंगे तो वर्ड तो आएगा लेकिन स्पीड नहीं बन पाती है, तो डेली थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, ठीक है। अब संडे के दिन क्या कीजिए, अब आपको मैं स्ट्रैटेजी, बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। संडे के दिन आप एक हफ्ते, मान लीजिए मंडे से क्लासेस चले सैटरडे तक पढ़े होंगे, ठीक। संडे को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, सब काम कीजिए, खेलिए कूदिए, जो करना है एंजॉय कीजिए, बट इसके लिए काम दीजिए, ठीक है। आप पहले शिफ्ट में ये कीजिए कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी पढ़ाया गया हो आपको, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक। रिवाइज मतलब एक चीज़ फिर से रीड कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, ठीक। उसके सेकंड शिफ्ट में क्या बनाइए, उस दिन को मान लीजिए 12-1-2 बजे के बाद ये शिफ्ट लगाइए कि उस समय ना आप उस सारी चीज़ को ना कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने में और उसको सॉल्व करने में। ये स्ट्रैटेजी ना आपके माइंड को शार्प बनाने में हेल्प करेगा। समझ में आया। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी टू द वर्क, डेडिकेशन टू द वर्क, ओके, डेली रूटीन रीडिंग एंड राइटिंग वर्क, ओके, एंड ऑन द संडे रिविजन डे ऑफ द होल वीक। पूरे वीक का जो क्या कहते हैं रिविजन वर्क होता है वो आप संडे को कर दिए। इसका फ़ायदा क्या हुआ जरा सोचिए तो, कि आपने उसी वीक के संडे को सारा स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, है कि नहीं। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके रख दिया। तो अब अगर उस पूरे वीक से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। आपके लिए बेनिफिट हुआ। ये कहीं से देखा हुआ स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तो आप ये फॉलो कीजिए स्कूल स्टूडेंट्स, और सबके लिए वैसे, लेकिन स्पेशली मैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये बनाया हुआ स्ट्रेटेजी। I need you all to follow this routine, and I am damn sure that if you follow this routine which I am telling to you,
you will surely conquer your all the examination, and you will never get fear during the examination time. एग्जामिनेशन टाइम क्या होता है, अरे कुछ पढ़े नहीं है, अरे यार टेस्ट आ गया, कोई टेस्ट टीचर बोलती कि टेस्ट टुमारो विल बी द टेस्ट और नेक्स्ट डे यू विल हैव योर टेस्ट, सडन हेडेक, ओह सर व्हाई, फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन विल कम एंड दिस दैट. ओके, सो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस ना कभी नहीं आएंगे आपके दिमाग में, और आप फ्रैंक होके कि आपने संडे को कंप्लीट कर लिया, ठीक, पूरा रिवीजन. फिर अगला वीक शुरू हुआ, फिर सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की, फिर संडे आया, उस मंडे से सैटरडे तक का कॉन्सेप्ट क्लियर. इसी तरह मान लीजिए तीसरे वीक में टेस्ट है, उस समय अगर टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो आपको ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की इन द सेंस नए तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. आप ऑलरेडी रिवाइज करके कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हुए हैं, तो आपको डर लगेगा नहीं, नेवर. जो मैं बोला हूँ ना, एक बार रिपीट करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को खुद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नज़र आएंगे. समझ में आया? ये सब स्ट्रैटेजी होती है. पहली चीज़ याद रखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए. दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी, रोज़ कार्य कीजिए, ठीक है, रोज़ पढ़िए लिखिए, रीडिंग इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट. थर्ड थिंग इज़ डेडिकेशन, कार्य के प्रति समर्पित रहिए, ठीक है. चौथी चीज़, रीडिंग शुड बी देयर, ओके, रीडिंग विल हेल्प यू. एंड फिफ्थ थिंग इज़ to clarify your doubts, and sixth and very important thing, daily revision and Sunday revision. Okay, so that's all from my side through this video, and if you have any doubt or query related to the studies, then kindly comment. I will make the video soon. Okay, thanks to you. Stay blessed.